ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਫ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਦੀ ਪਾਵਰ sin x ਦੀ ਪਾਵਰ x, then find dy by dx। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ u plus v। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ u ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ sin x, ਜਿਹੜਾ v ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ sin x ਦੀ ਪਾਵਰ x। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਲੋਗ ਲੈ ਲਿਆ, log u log x ਦੀ ਪਾਵਰ sin x। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੋਗ ਲੈ ਲਿਆ, log sin x ਦੀ ਪਾਵਰ x। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸਨੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ sin x log x। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ x log sin x। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰ ਦਿਓ, 1/u du upon dx sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos x log x plus sin x log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1/x du upon dx equal to u cos x log x plus sin x upon x। u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, x ਦੀ ਪਾਵਰ sin x cos x log x sin x upon x। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਾर्ट देखिए, v बराबर sin x की पावर x। जो log लिया था log v बराबर पावर अगे आ गई log sin x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log द डेरिवेटिव 1/v dv upon dx बराबर पहले द प्रोडक्ट रूल लग गया, पहले द डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस दूसरे द डेरिवेटिव log द डेरिवेटिव 1/sin x। ਹੁਣ एंगल ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ sin ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ cos x ਪਹਿਲਾ ਸੇਮ dv upon dx, v ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ log sin x cos upon sin ਕੀ ਹੁੰਦਾ cot x into x। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, dy upon dx equal to du upon dx dv upon dx। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ du upon dx ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dv upon dx ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਪੁੱਟ ਇਨ ਸਟਾਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ dy upon dx equal to x ਦੀ ਪਾਵਰ sin x cos x log x plus sin x upon x plus v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, sin x ਦੀ ਪਾਵਰ x sin x ਦੀ ਪਾਵਰ x log sin x plus x cot x ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट। और ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ if x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square y is equal to 2t upon 1 plus t square। ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ dy upon dx plus x upon y equal to 0 ਹੁੰਦਾ है। चलो करते हैं पुट की करता t tan थीटा, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ t tan थीटा पुट ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ 1 minus tan square upon 1 plus tan square, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ y is equal to 2 tan upon 1 plus tan square। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1 minus tan square upon 1 plus tan square ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ cos 2 ਥੀਟਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ 2 tan upon 1 plus tan square ਦਾ ਹੁੰਦਾ sin 2 ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਥੀਟਾ dx upon d ਥੀਟਾ cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ minus sin 2 ਥੀਟਾ into 2 ਮਤਲਬ minus 2 sin 2 ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਥੀਟਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ dy upon d ਥੀਟਾ equal to cos 2 ਥੀਟਾ into 2 equal to ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 cos 2 ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ dy upon dx equal to ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ dy upon d ਥੀਟਾ into d ਥੀਟਾ upon dx equal to minus 2 cos 2 ਥੀਟਾ upon minus 2 sin 2 ਥੀਟਾ। 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ cos 2 ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ dy upon dx equal to cos 2 ਥੀਟਾ 1 minus tan square थीटा upon 1 plus tan square थीटा बटा sin 2 थीटा 2 tan थीटा upon 1 plus tan square थीटा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ tan थीटा ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ t ਹੈ equal to 1 minus t square upon 1 plus t square 2t upon 1 plus t square। 1 minus t square 1 plus t square ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x 2t upon 1 plus t square ਕੀ ਹੈਗਾ y। ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ dy upon dx plus x upon y equal to 0। ਆਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। 11th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਨੀਚੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇ ਪਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ 3x plus 2 upon x minus 2 x square plus 1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ bx plus c ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a upon ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ x minus 2 plus
बी एक्स प्लस सी अपॉन दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जो भी नीचे डिवाइड है इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस एक्स माइनस 2 बी एक्स प्लस सी। और सब तो पहला एक्स माइनस 2 पुट एक्स इक्वल टू 0 पुट एक्स इक्वल टू 0 जो एक्स में 0 पुट किया इधर किनारे 2 बराबर 0 ए ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ एक्स स्क्वायर ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ पुट एक्स इक्वल टू 2 पुट किया इतने कितना हो गया पुट एक्स इक्वल टू 2 पुट करना है 3 दूनी 6 तो 2 8 बराबर 2 3 4 1 5 है ए दी वैल्यू कितनी आ गई 8 बटा 5 ए दी वैल्यू कितनी आ गई 8 बटा 5। हुण पुट कर दो एक्स इक्वल टू 0 पुट एक्स इक्वल टू 0 जो मैं एक्स 0 पुट किया 2 बराबर 0 ए माइनस 2 एक्स 0 पुट किया 0 सी ए दी वैल्यू कितनी आई अपने को 8 बटा 5 माइनस 2 सी 2 माइनस 8 बटा 5 माइनस 2 सी 10 एलसीएम ले लिया था 2 बटा 5 इक्वल टू माइनस 2 सी बराबर कितना आ गया माइनस 1/5। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ b ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कंपेयर कर एक्स स्क्वायर कोई भी नहीं है 0 बराबर ए बी एक्स स्क्वायर होएगा प्लस बी ए दी वैल्यू कितनी आई अपने को 8 बटा 5 प्लस बी बराबर 0 बी बराबर माइनस 8 बटा 5 ये बी दी वैल्यू आ गई। हुण ए बी सी दी वैल्यू इत्थे रख दिओ क्वेश्चन विच। फैक्टर बन चुके अपने ए बी सी की वैल्यू आ गई ए बी सी की वैल्यू हम आप रख लीए इस रखिए अपन 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 2 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 8 बटा 5 एक्स माइनस 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई माइनस 8 बटा 5 बी की वैल्यू कितनी माइनस 8 बटा 5 एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी माइनस 1 बटा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हूँ इंटीग्रेशन करता दोनों साइड इंटीग्रेशन डी एक्स 8 बटा 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस हम थोड़ा सोल्व करा था माइनस 8 बटा 5 इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 1 बटा 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स 8 बटा 5 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 2 माइनस 8 बटा 5 नीचे ऊपर डेरिवेटिव देखो बने पे जिनमें 4 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 1 बटा 5 द इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन की होंगे tan इनवर्स एक्स 8 बटा 5 log एक्स माइनस 2 माइनस 4 बटा 5 नीचे ऊपर डेरिवेटिव पे होता log all the following LPP graphically maximize and minimize z upon the 4x plus 2y minus 7 subject to construct इक्वेशन वाली दे रखी इक्वालिटी इक्वेशन दे रखी हम जब एक्स ग्रेटर दैन 0 वाई ग्रेटर दैन 0 तो मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट विच हम जो इसमें सोल्व करना करते थे क्या करते थे एक बार x 0 एक बार y 0 इक्वल टू मान लो x प्लस 3y इक्वल टू 60 जो x 0 होया तो y कितना हो जाएगा 20 जो y 0 होया तो x कितना हो जाएगा 60। सिमिलरली x y एक बार x 0 एक बार y 0 10 फुल इनक्वालिटी अब जो इनक्वालिटी है ये थोड़ा ध्यान नाल करनी है क्योंकि इतना तो पता कर लाँगे कि ग्राफ किहड़ी साइड जाएगा x ग्रेटर दैन 0 तो y ग्रेटर दैन x ग्रेटर दैन 0 मतलब इधर इस वाली साइड x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0 s तो ऊपर वाले पॉजिटिव रहेगा मतलब जब दोनों का कॉमन पार्ट आ रहा वाला आ रहा पहले क्वाड्रेंट की गल हो रही है। हम आप लाइन बनानी है लाइन की इक्वेशन देखो कि हो जाए x 0 20 20 का ले लो 20 40 60 20 40 60 20 40 60 x 0 y b हमने कि y एक्सिस पे होया x 0 कितना होंगे y एक्सिस पे y कितना रुक रहा 20 ते मतलब अगला पॉइंट आ जाएगा इन्हें आप ए पॉइंट मान लिया कितना हो गया 0,20 हूँ x 60 y 0 x 60 y 0 अपन पता y 0 कितना होंगे x एक्सिस पे होंगे इन्हें b पॉइंट मान लिया 60,0 दोनों मिलाता हूँ x भी 0 कर दो y भी 0 कर दो जो x भी 0 किया y भी 0 किया था
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 60 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੋਂ। ਹੁਣ 60 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੇਡ ਹੈ ਓਰੀਜਨ ਦੀ ओर आ रही है, मतलब इस तरफ आ रही है इस दी शेड वाली लाइन दी। ਹੁਣ सिमिलरली इधर करना है x0 y10 कुछ इतने होएगा, x0 इतने होएगा, C पॉइंट मान लिया 0,10 y10 x10 y0 इतने होएगा, दोनों ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 0 ਲਿਆ, 0 ग्रेटर दैन 10। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 0 ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 10 ਤੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਗੀ ਓਰੀਜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਊਗੀ, ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਜਾਊਗੀ। x माइनस वाई इक्वल टू 0 x इक्वल टू वाई। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ x इक्वल टू वाई हमेशा ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਲਾਈਨ। ਆ ਪੁਆਇੰਟ D ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, D ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10,0। ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਓਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਡ ਇਸ ਤਰਫ ਆਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਊਗੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਲਓ 20, ਜਾਂ 10,0 40,0 ਕੁਛ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮੰਨ ਲਓ 60,0 ਚੱਕ ਲਿਆ, 60,0 60 ਲੈਸ ਦੈਨ 0। 60 ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ 0,60 ਚੱਕ ਲਿਆ, 0,60 ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ 0 - 60 ਲੈਸ ਆਪਣਾ -60 ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਤਰਫ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਡ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਤਰਫ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, x - y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਆ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ x + 3y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 60। ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y, x + 3x ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਹੈ, तो y की जगह मैं x रखता, 4x इक्वल टू 60, x इक्वल कितना आ गया 15, x 15 आ गया तो y भी कितना आ गया 15 ही आ गया। हमने आप जी सोल्व की है, वाली लाइन की इस करके ई पॉइंट हो गया 15,15। हमने वाली दोनों लाइन सोल्व की अपन पता x इक्वल टू y है, वाली लाइन की इक्वेशन की है x + y इक्वल टू 10, x + x इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5 इक्वल टू y, x 5 आ गया, y भी कितना आ गया 5 आ गया। पॉइंट मान लिया f पॉइंट है 5,5। बस ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ z ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4x + 2y - 7 ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 0,20, ਤਾਂ z ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਇੱਥੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ 20 ਇੱਥੇ y 20 ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ 40 - 7 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 33। b ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ बी पॉइंट नहीं रख सकते, सी डी भी नहीं रख सकते, सी रखा, सी पॉइंट की है 0,10, जेड की वैल्यू की आ जाएगी 20 - 7 इक्वल टू 13। ई पॉइंट रखा, ई टैप रखो, ई पॉइंट कितना 15 × 15, जेड इक्वल टू 60 + 30 - 7, 90 विच 7 क्या है 83। एफ पॉइंट रखा था जेड इक्वल टू 20 + 10 - 7 इक्वल टू 23। हम देखो मैक्सिमम कितने आ रहा, मैक्सिमम एट 83 वैल्यू आई है, इसलिए मैक्सिमम कितने आ रहा है एट ई 15,15 ਤੇ मिनिमम कितने आ रहा मिनिमम वैल्यू जी वैल्यू मैक्सिमम कितनी आई अपने को 83, मिनिमम कितने आ रहा 0,10 ਤੇ सी पॉइंट ਤੇ 0,10 इक्वल टू 13 वैल्यू आ जाएगी। ये अपना आंसर हो जाएगा 13 क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट सोल्व x log x dy/dx + y इक्वल टू 2 x log x डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। करांगे कि मैं देखो x log x dy/dx + y इक्वल टू 2 x log x, डिवाइडिंग बाय x log x कर दिया था dy/dx + y x log x इक्वल टू 2 x log x log x log ना log कैंसल, dy/dx y x log x प्लस इक्वल टू 2 x स्क्वायर। देखो अपन पता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होए तो इंटीग्रेशन फैक्टर आप लगा सकते हैं। इतने वाई dy/dx इतने वाई होए तो जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर होंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर की होंगे e की पावर इंटीग्रेशन जो भी वाई अगे फंक्शन पे आएगा f(x) dx, इंटीग्रेशन फैक्टर की बन जाएगा 1/x log x to dx इक्वल टू e log x t पुट किया, log x नो t पुट किया था, पुट log x इक्वल टू t 1/x dx इक्वल टू dt, 1/x dx इक्वल टू क्या गया dt, log x की पुट किया t dt e की पावर log t, log ना कैंसिल हो जाता इक्वल टू क्या गया t की अपने को log x। आपको इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ y/dx ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਇਨਟੂ y
ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉ ਈ ਦੀ ਲੋਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, log x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर क्यों लिखता से ਆਪਾਂ दोनों साइड इंटीग्रेशन करता, इंटीग्रेशन करना डेरिवेटिव इधर क्या हो गया कैंसिल हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੈ इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू क्यों जो भी ਸੀਗਾ इंटीग्रेशन फैक्टर ਆਪਣੇ ਕੋਲ log x ਆਇਆ, क्यों ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ 2 upon x स्क्वायर 2 upon x स्क्वायर 2 ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, log x upon x स्क्वायर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ इंटीग्रेशन करना है, ਕੀ ਕਰੋ पुट कर दो log x इक्वल टू t, दोनों साइड में e ले लिया था तो x इक्वल टू क्या e दी पावर t dx इक्वल टू e दी पावर t इंटू dt 2 इन अपॉन लग तो कर लिया आई मान लिया आई इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन log x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਸੀ t अपॉन x इक्वल टू क्या आ गया सी e दी पावर t ऊपर स्क्वायर e दी पावर 2t dx किंदे इक्वल है e दी पावर t dt 2 इंटीग्रेशन t e दी पावर माइनस t dt। ਹੁਣ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो इस विच 2t e दी पावर माइनस t dt इंटीग्रेशन बाय पार्ट कराया था फर्स्ट से दूसरे का इंटीग्रेशन पर माइनस टी माइनस का इंटीग्रेशन क्या माइनस हो गया माइनस इंटीग्रेशन का निशान फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव ना 1 दूसरे का इंटीग्रेशन ए दी पावर माइनस टी अगे माइनस आ गया डी टी 2 माइनस टी ए दी पावर माइनस टी फिर इंटीग्रेशन का माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए दी पावर माइनस टी 2 माइनस टी अपॉन ए दी पावर टी माइनस 1 अपॉन ए दी पावर टी जो टी सीगा अपने को कितना सीगा टी की वैल्यू कितनी सीगी log x टी आप पुट करिया log x ए दी पावर टी कितने को x दे माइनस log x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x बस इसमें पुट कर दो इसकी जगह रख दो, ये अपना क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा पार्ट देखो x स्क्वायर dy जो भी अपने को इक्वेशन दे रखी है गिवन दैट y इक्वल टू 1 x देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। हुन होमोजेनियस इक्वेशन आपको पता है किवें सोल्व करते हैं y इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू वी एक्स करके पुट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू की करता x करता था dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx प्लस v, पहले डेरिवेटिव दूसरा सेम x dv बाई dx प्लस v। थोड़ा इसमें सही करिए था dy अपॉन dx माइनस 3x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0 पॉइंट की पुट किया आपा vx dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई x dv अपॉन dx प्लस v इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू vx प्लस vx का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0 x dv अपॉन dx प्लस v माइनस x के ऊपर कॉमन आ रहा है x स्क्वायर में कॉमन ले लिया 3 प्लस v स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर कैंसिल v नाल v कटा जाएगा हमको की बच गया v dv अपॉन dx माइनस 3 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 0 x dv अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस v स्क्वायर। होने तो आप वेरिएबल सेपरेबल कर दिए dv अपॉन 3 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x इंटीग्रेशन बहुत साइड कर दो तो क्या आ जाएगा हम देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस x का इंटीग्रेशन की होता सीगा 1 अपॉन ए जो मैं 3 नु √3 दा स्क्वायर लिखना कोई फर्क नहीं पैना तो 1 अपॉन ए √3 tan इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू log x प्लस c। हुन उसने अपना क्वेश्चन चाहिए दे रखा सीगा कि y इज इक्वल टू 1 ਤੇ ਜਾਂ x इक्वल टू एट x इक्वल टू 1 ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖੋ 1 upon √3 tan ਇਨਵਰਸ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ y upon x y इक्वल टू v इक्वल टू y upon x y upon x √3 इक्वल टू log x प्लस c। पार्टिकुलर सॉल्यूशन ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ x इक्वल टू 1 ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 1 ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 1 upon √3 tan ਇਨਵਰਸ 1 upon √3 log 1 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ tan ਇਨਵਰਸ 1 upon √3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ tan इनवर्स 1 upon √3 कितना होता अपने को पाई बाय 1 upon √3 tan इनवर्स tan पाई बाय 6 इक्वल टू log 1 0 tan और tan कैंसिल c की वैल्यू कितनी आ गई पाई अपॉन 6√3 बस वाली c की वैल्यू इतने पुट कर दो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट whose chances of solving are 1/3 1/5 1/6 what is the probability that exactly one of them solve the problem। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ exactly one of them मतलब ਕਿਸੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੀ ਹੋਗੀ ਸੋਲਵ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ a ਦੇ ਰੱਖਿਆ a ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ 1/3 ਵਿੱਚ b ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ 1/5 ਵਿੱਚ c ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ 1/6 ਵਿੱਚ। ਹੁਣ a ਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2/3 b सोल्व ना करेगा तो 4/5 c तो सोल्व नहीं होता 5/6 एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब क्या मतलब इन्होंने तीनों किसी एक ने सोल्व की प्रॉब्लम उन्होंने तीनों किसी एक ने प्रॉब्लम सोल्व की तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली वन ऑफ देम दी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व प्रॉब्लम
की हो जाएगी, मान लो पहले ने सोल्व करती दूसरे तो ना तो नहीं हुई, प्लस दूसरे ने सोल्व कर, मान लो पहले तो नहीं हुई दूसरे ने सोल्व करती तीसरे तो भी नहीं हुई, या की हो सकता है पहले तो भी नहीं हुई दूसरे तो भी नहीं हुई तीसरे ने सोल्व करती। बस उन्हें वैल्यू पुट कर दे, अपना आंसर आ जाएगा जो भी होगा। प्रोबेबिलिटी है किन्ने 1/3, बी बार किन्ना 4/5, सी बार किन्ना 5/6, प्लस ए ना करे तो 2/3, बी ने करती तो 1/5, सी तो नहीं हुई तो 5/6, ए तो भी नहीं हुई बी तो भी नहीं हुई बट सी ने तो करती 5/, बस नोट कैलकुलेशन है तुम कर लो, सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उन्हें दूसरे पार्ट में कह रहा दूसरे पार्ट में कह रहा प्रॉब्लम इज सोल्व, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए है जिन मर्जी जो मर्जी हुए, मतलब प्रॉब्लम सोल्व होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सोल्व, प्रॉब्लम इज सोल्व, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सोल्व तो की हो जाएगा, मतलब पूरे सारे ने सोल्व कर दिते, मतलब एक होंगी है मतलब सारे ने सोल्व कर दिता, एक होगी एक विचों किसी ने भी नहीं की तो अपनी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बस वैल्यू पुट कर देते 2/3, 4/5, 5/6, प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सोल्व तक इवेंट करते हैं आप 1 माइनस किसी तो भी नहीं प्रॉब्लम सोल्व होगी, ठीक है। इस तरह आपको लिया की आ जाएगी, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और कैलकुलेशन कर लो तुम आप प्रूव करना फंक्शन रियल तो रियल f(x = 5x + 3.4 is 1 1 एंड ऑन टू, हम प्रूव करना कि फंक्शन 1 1 है, और 1 1 किवें प्रूव करते सीगे जे f(x1 = f(x2) है तो x1 = x2 आना चाहिए, तो ही फंक्शन अपना की होगा 1 1 होएगा। हुन f(x1) फंक्शन विच f(x1) रखो 5x1 + 3/4 = x2 रखो फंक्शन विच 5x2 + 3/4 ना 4 कैंसल, 5x1 + 3 = 5, x2 + 3 ना 3 कैंसल, 5 ना 5 कैंसल हो जाएगा, x1 = क्या आ गया x2। हुन इसलिए अपन कह रहे हैं फंक्शन की है 1 1 है। हुन फंक्शन ऑन टू पुट करना है, ऑन टू पुट करने लिए की करो f(x0) = y मान लो, f(x0) की मान लिया y, 5x0 + 3/4 = y, तो x0 की वैल्यू निकालो, x0 की वैल्यू अपने को आ जाएगी 4y - 3/5, मैं डायरेक्टली करती सही। हुन ये वाली जी x0 की वैल्यू आई है ना, x0 की वैल्यू आई है, इन्हों इस फंक्शन में पुट करो f(x0) = ये इतनी वैल्यू आई है 5 4y - 3/5 + 3/4, 5 ਨਾਲ 5 कैंसल, 4y - 3 + 3/4, 3 ਨਾਲ 3 कैंसल, 4 ਨਾਲ 4 = y, तो f(x0) = y आ जाए तो आप कह देंगे फंक्शन किया ऑन टू है, ठीक है। हम थोड़ा ग्राफिकली जो समझे तो ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा होगा, कुछ इस तरह का, कुछ भी हो सकता है इस तरह हो सकता है। तो तू देख रहा है कि एक पॉइंट से एक ही बन रहा है, कोई दूसरा पॉइंट नहीं बन रहा, इसलिए आप कह रहे हैं फंक्शन 1 1 है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं फंक्शन की हेंस प्रूव फंक्शन इज 1 1 एंड ऑड टू। इन द ए पार्ट यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दे रखा, अपन 3 पॉइंट दे रखा तो एरिया दे रखा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਰਾਈ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ 1/2 ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ -3 6 -4 4 k -2 1 1 1 कर दो इक्वल टू एरिया अपन दे रखा ट्रायंगल का 12, इधर नीचे डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस अब डिटरमिनेंट सोल्व करो -3 4 + 2 -6 -4 -k +1 8 -4 k इक्वल टू 2 डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 × 24 उन्हें सोल्व किया 4 2 6 6 4 2 6 6 18 माइनस 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 प्लस 24 + 6k + 8 - 4k इक्वल टू 24, 24 कैंसिल हो गया, इधरों 18 में 8 गया -10 + 2k इक्वल टू 0, के अपने को कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बी पार्ट देखो इफ x आ दे रखा 2x - y, अब मैट्रिक्स दे रखा फाइंड द वैल्यू 5 फाइंड करना है आप। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਆ ਗਿਵਨ ਹੈ 2x - बस x ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖ ਦਿਓ 2 3 2 4 -1 -y इक्वल टू 5 3 10 -5 2 अंदर मल्टीप्लाई किया 6 8 4 -2 -y इक्वल टू 5 3 10 -5, इधर सारा प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5 3 10 -5 -6 4 8 -2 करो माइनस करो -1 2 -1 -5 प्लस -5 कितना हो जाएगा -3 माइनस उधर भेज दो, माइनस उधर भेजा तब माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, अपनी पाई मैट्रिक्स आ गई।